Hello everyone, welcome in lecture number 3 of the subject research methodology. The title of the lecture is about research process structure. In this specific lecture we will mainly talk about what is research process and what is research structure. When we combine both of them together, so how it actually originate or assemble like three of the concept together. Is today we already had a lecture at the campus, but as most of the students they did not attend the lecture, so all those students who did not mark their attendance, they are considered absent. But like not to connect the like to miss any information, so I already prepared a lecture for each and everyone. If anyone missed something, to listen again in the audio presentation as well. So in this lecture, you should each and everyone should know about like what are the core topics which we will cover about this specific lecture. It's very much important because I'm gonna explain each and everything in a quite detail. Okay, first of all, you will get the idea about the research process, and then how you can write the research article and what are its core parts, okay, or the element of the research article, such as title, abstract, introduction, literature review, methodology, result discussion and conclusion. And then what is we will talk about plagiarism as well. We will also talk about how we can submit our article, and then in the last, which I usually ask from the student, how to be social in a research. Okay, so we will get to know all those topic in a quite detail. So first of all, coming to the very first slide of the research process, uh, this is very much important that how you can start your work. So if you look above the research process, there is a very first element about available literature review. Keep in mind one thing: whatever or what you want to do in your research, in your research project, in your master or a PhD, you need to know one thing. For you, it will be quite easy if you did not start from zero, okay, because it's very hard if you start from very zero, okay. जो काम आप लोगों ने करना है, पहले आप लोग ये देख लो कि उस पर कितना काम हुआ है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. सेकंड ये कि ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने करना हो पेशावर के ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ के बारे में, इफ़ यू वांट टू कंडक्ट योर स्टडी, तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों को मुख्तलिफ काम पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे. जिस किसी ने भी ट्रांसपोर्टेशन इशू पर पूरी दुनिया में कहीं पर भी काम किया हो, लाइक रीड डिफरेंट वर्क विच ऑलरेडी डन, और वो कौन कौन से पैरामीटर है जो उन लोगों ने सेलेक्ट किए हैं. ठीक है ना जी. सेकंड, आप लोगों का स्टेज आ जाता है फार्मूलेट रिसर्च गोल. अच्छा, फार्मूलेट रिसर्च गोल का ये मतलब है कि रिसर्च गोल या रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से आज आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन इस पॉइंट में बताने का ये मकसद क्या है कि व्हाट यू वांट टू अचीव, और सेकंड ये कि जो आप वो कौन से टारगेट है, गोल्स है जो आप अपने रिसर्च के थ्रू अपने अहदाफ का आप लोगों ने तयन करना होगा, दैट व्हाट यू वांट टू अचीव. ठीक है ना. सेकंड ये है कि सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है ना, या स्ट्रक्चर. तो उसमें यह है कि आप, अगर आपका कुछ काम है डेटा कलेक्शन के लिहाज से, तो पहला सवाल यह है कि आपकी सैम्पलिंग कैसी होगी, which mode or which way you will use to start your data collection. सेकंड आपकी फिर आ जाती है एनालिसिस. कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से टूल, कौन से ग्राफ, चार्ट, मेथडोलॉजी आपको चाहिए अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए. क्या आपको कोई मॉडलिंग का पार्ट है, तो उसके लिए फिर आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा या किसके थ्रू आपने ये करना है. और फोर्थ आपका ये फिर पार्ट है कि उसी टॉपिक पर कोई अवेलेबल काम हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है ना. और नेक्स्ट है फिर आपका राइटिंग पार्ट. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल पार्ट के तरफ. ठीक है ना. फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रीट फाइंडिंग की तरफ के. इस सेक्शन का ये मतलब है कि इस सेक्शन में
this specific section in simple word is your opportunity to make sense of your finding by situating them in a relation to a previous finding. ठीक है ना. This is समथिंग अबाउट हाउ यू कैन इंटरप्रिट. सिंपल से अल्फाज में ये है कि नताइज का सेक्शन जो हो फाइंडिंग्स का, तो वो इस बात की तर्जुमानी करे कि जो पिछला काम हुआ है, जो पिछला काम हुआ है, क्या आपका काम उसी लिहाज से उसी पिछले काम का कुछ दिफा कर रहा है कि नहीं. मतलब इसका ये है कि वो जो हम लोग कहते हैं ना खलाई, बहुत ज़्यादा ही मतलब ख्याली पलाव के the first thing in research, whatever you suggest or whatever you said, it should be based on complete evidence. ठीक है ना. अपने अपनी तरफ से you don't have any place to interpret, to suggest या फिर analyze या फिर अपनी तरफ से कुछ thoughts आना, तो कुछ इल्हाम मिल्हाम रिसर्च में बिल्कुल नहीं होता. आप लोग एक काम, एक बात आज से आप लोग बिल्कुल सिंपल से आप लोग लिख लीजिए. इवन लिटरेचर रिव्यू में जब कभी हम लोग किसी डेटा स्ट्रक्चर, किसी फिगर की तरफ रेफरेंस करते हैं, उसको जब हम लोग कोट करते हैं, वहाँ पर भी फिर आपको साइट करना पड़ता है, क्योंकि वो आपके अपने अल्फाज नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिर टू पब्लिश द वर्क. इंशाल्लाह ये पार्ट हम लोग कवर करेंगे फाइनल टर्म के कोर्स में. ठीक है. आप लोग को मैं ये सिखाऊंगा कि आप लोग जर्नल कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हो, ओपन एक्सेस जर्नल क्या होते हैं, क्लोज्ड एक्सेस क्या होते हैं. हम लोग बात करेंगे SCI के बारे में, ESCI के बारे में हम बात करेंगे, EI के बारे में बात करेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जर्नल के रिकग्निशन का क्या तरीका है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत ही डिटेल में. ठीक है जी. अच्छा, सिंपल से अल्फाज में हम अपने स्टडी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं. डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब ये है कि एनालाइज आपने क्या करना है, आपके स्टडी का ऑब्जेक्ट क्या है, आपके स्टडी का पर्पस क्या है, आप लोग किस लिहाज से कर रहे हो, कहाँ पर आप फोकस कर रहे हो, और कौन से लोगों को के पर्सपेक्टिव का ये मतलब है उनके नुक्ता नज़र किसके लिहाज से आपने करना है, और किन के कंटेक्स्ट में, मतलब सियाको सबाक क्या है, उसका करने का तरीका या अंदाज या मकसद क्या है. आप लोगों को अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में हल्की सी एक एग्जांपल आप लोगों को मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप लोगों का ये स्लाइड नंबर 4 क्लियर हो जाएगा. अब देखो ना, ये अब एक एग्जांपल है कि एनालाइज द PBR एंड चेकलिस्ट टेक्निक फॉर द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है ना. अच्छा, अब अगर ये एक ऐसी सेंटेंस हो तो ये बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है. अब इसमें किसी को कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा कि आपने करना क्या है, या आपका फॉर एग्जांपल पर्पस क्या है, या आपका कंटेक्स्ट क्या है, या आपने किसके पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप काम कर रहे हो. तो इसको फार्मूलेट करने का, आपके गोल को फार्मूलेट करने का आसान तरीका ये है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोग एनालाइज कर रहे हैं PBR के चेकलिस्ट टेक्निक को. ठीक है. किसके लिहाज से, किन के लिहाज से उनको एवोल्यूएट और कंपेयर कर रहे हैं, और हमारा क्वालिटी का जो फोकस है विद रिस्पेक्ट किन के लिहाज से है कि उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी को हम लोग मेजर कर सके. किन के लिहाज से, रिसर्चर के लिहाज से. कंटेक्स्ट हमारा क्या है ये सब कुछ करने का, MS और PhD के जो डॉक्यूमेंट है उनके स्टूडेंट को बेसिकली स्क्रूटनिंग करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए. तो ये बहुत ही सिंपल सा एक चार्ट है. जब भी आप लोगों ने कोई काम करना हो तो आप लोग सिंपल सा ये अगर चेकलिस्ट आपके साथ कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप खुद भी क्लियर हो, और जो कोई आपका काम पड़ेगा वो भी आपके बारे में क्लियर होगा कि मतलब एनालाइज क्या कर रहा है, किसके पर्पस से, और उसका रिस्पेक्ट क्या है, किन के लिहाज से उसने ये काम करना है, पर्सपेक्टिव क्या है. ठीक है. और कंटेक्स्ट क्या है काम का. अब जैसे इस कोर्स का जो कंटेक्स्ट है, इसका कंटेक्स्ट है MS और PhD स्टूडेंट को रिसर्च सिखाने का. किन के लिहाज से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए रिसर्चर के. ठीक है. और रिस्पेक्ट क्वालिटी फोकस क्या है, क्वालिटी फोकस ये है टू ग्रो, टू परसीव फॉर द हायर एजुकेशन. रिसर्च आर्टिकल की पब्लिकेशन की तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. एक तो आप लोग का थीसिस का पार्ट है, वो तो देखो डिग्री के पर्पस के लिए है. बट इफ़ यू रियली वांट टू परसीव
फॉर योर हायर एजुकेशन तो फिर आपको पब्लिकेशन करने पड़ते हैं, मास्टर के लेवल पर भी, पीएचडी के लेवल पर भी। अगर किसी ने अभी तक कुछ पब्लिश किया है तो उसको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन अगर किसी ने अभी तक पब्लिश न किया है तो काइंडली आप लोग अभी से हल्का, आप लोग लर्निंग के साथ साथ यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर राइटिंग स्किल एज वेल। अच्छा, अब बहुत ही सिंपल सा एक सवाल, आई होप कि जितने भी लड़के इस कोर्स में है उनके लिए ये सब्जेक्ट इस लिहाज से ज़रूरी है कि एट द एंड ऑफ देयर एम एस थीसिस दे शुड राइट देयर, एट द एंड ऑफ एम एस स्लैश पी एच डी दे शुड राइट दी एम एस थीसिस, राइट। तो इसके लिहाज से ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक भी होगा और फंडामेंटल भी है। अच्छा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग तो नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चार्ट है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। अब हमारा अगर रिसर्च आर्टिकल हो या हमारी रिसर्च थीसिस हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। नंबर फर्स्ट हमारा टाइटल होता है, सेकंड हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर हमारी लिटरेचर रिव्यू होती है, फिर मेथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट, फिर डिस्कशन, फिर कंक्लूजन। इसके करने का तरीका क्या है, अब ये है क्या क्या, एक एक का टेक्निक क्या है, कैसे करना है, वो इंशाल्लाह आप लोग इस लेक्चर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि टाइटल क्या होता है। टाइटल मौजू, जो आपके काम का मौजू होता है। अब अगर मुझसे कोई पूछ ले या मेरे अगर कोई सजेशन लेना चाहे तो उसके लिए मेरे चार अल्फाज होंगे। नंबर फर्स्ट, योर टाइटल शुड बी शॉर्ट, योर टाइटल शुड बी कंसाइज, योर टाइटल शुड बी कंक्रीट, इट शुड बी अपीलिंग। अच्छा, शॉर्ट क्या है, मुख्तसर हो और वो एक बहुत ही यूनिक भी हो। कंसाइज, जो आप कहना चाहते हो उसी टाइटल में सब कुछ उसके अंदर हो। कंक्रीट, ये कम्युनिकेशन का के 7 सीज में के ये दो बेसिक पार्ट है, कंसाइज और कंक्रीट। अपीलिंग क्या है कि जो आप काम कर रहे हो, आपका टाइटल कोई भी सिर्फ पढ़ ले तो उसमें एक लगन होना चाहिए, एक जस्तजू होना चाहिए आपके काम को करने का, आपके काम को पढ़ने का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ये है सिंपल से अल्फाज में कि आपके टाइटल में आपका रिसर्च मेथड होना चाहिए, आपकी अचीवमेंट क्या है और आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। जैसे अब ये एक सिंपल सा एक टाइटल है, जैसे इंजीनियरिंग रिलायबिलिटी एनालिसिस ऑफ रॉक मास इन चाइना बेस्ड ऑन स्टोकेस्टिक फाइनाइट एलिमेंट मेथड अप्रोच। अच्छा, रिसर्च मेथड क्या है, इंजीनियरिंग रिलायबिलिटी हमारी अचीवमेंट है, इसकी हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं। रिसर्च मेथड हमारा क्या है, वो है हमारा स्टोकेस्टिक फाइनाइट एलिमेंट का, और जो हमारी प्रॉब्लम है वो है हमारी रॉक मास के अंदर। इसी तरह फिर हमारी है DINSR, टेक्निक फॉर स्लो मूविंग लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग बेस्ड ऑन स्लोप यूनिट, ठीक है। अब सिंपल से अल्फाज में कि आपके रिसर्च मेथड के साथ आपकी अचीवमेंट और आपका प्रॉब्लम अगर आपके टाइटल का हिस्सा है तो वो टाइटल एक बहुत ही कंप्लीट टाइटल समझी जाएगी। अब देखो, एक ही सेंटेंस में हो और शॉर्ट भी हो और मुख्तसर भी हो और कंप्लीट भी हो, तो ये टाइटल के कुछ उसूल है, कुछ रूल भी है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट का। ये आपके आर्टिकल का सबसे पहला पोर्शन होता है आपके टाइटल के बाद। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट समराइज यूजुअली इन 1 पैराग्राफ। इसमें 300 वर्ड में आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र आपने करना होगा। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपका काम का, आपके काम का, आपके थीसिस का लेस देन हाफ पेज के अंदर पूरी स्टोरी आपने लोगों को बतानी होंगी, ठीक है। इसमें आपकी स्टडी का ओवरऑल पर्पस भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए, आपकी स्टडी का बेसिक डिज़ाइन क्या है, आपने कौन कौन से मेजर फाइंडिंग्स करने हैं वहाँ पर, आपकी एनालिसिस कैसी है और आपने क्या हासिल कर लिया। तो अगर ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हो तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट एक मुकम्मल, एक कंप्लीट तस्वुर की जाएगी। आम से अल्फाज में बताने का ये मकसद है कि वो एक मुख्तसर आधी पेज, ताकि वो सिर्फ उसको कोई पढ़ ले और वो कंप्लीटली उसको एक आइडिया हो जाए, तो ये एक मुकम्मल, एक कामिल एब्स्ट्रैक्ट तस्वुर की जाएगी। अगर आप लोगों को मज़ीद भी थोड़ा सा आइडिया लेना हो तो स्लाइड के लास्ट में यहाँ पर इसी स्लाइड नंबर 10 के साथ ही मैंने एक लिंक भी दे रखी है, आप लोग डिटेल में और भी फिर पढ़ सकते हो। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट
अब आम से अल्फाज में ये वो सेल्फ कंटेंड, वो मुख्तसर और वो एक मजबूत तरीन, एक ताकतवर स्टेटमेंट होती है जो आपके पूरे काम की आकासी करती है। इसमें आपको स्कोप भी बताना पड़ता है, आपके काम का मकसद क्या है, आपके काम के नताइज क्या है, और आपने ये काम किया कैसे है। तो ये सारी चीज़ें जो हो, ये वहाँ पर मुख्तलिफ अंदाज में जब आप इनको रिप्रेजेंट कर लेते हो तो ये एक मुकम्मल एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट है इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट इट एक्ट एज अ सरोगेट। अब सरोगेट का ये मतलब है कि वो काम जो आपके पूरे काम को रिप्रेजेंट कर ले एक ऐसे अंदाज में ताकि कोई भी आपके एब्स्ट्रैक्ट को सिर्फ पढ़ ले, उसमें फिर एक जस्तजू, एक लगन हो आपके काम को आगे बढ़ाने की। सो ही शुड कैरी आउट योर वर्क। ओके, अच्छा, इस स्लाइड में द एब्स्ट्रैक्ट इट शुड अलाउ यू टू एलेबोरेट अपॉन ईच अदर द मेजर एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली ये सिंपल रूल ऑफ थंब है जिसमें रिगार्डिंग योर स्टडी यू शुड आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि क्या आपके एब्स्ट्रैक्ट में वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पूरे काम की आकासी करें। सेकेंड पार्ट ये है कि does it tell the whole story about your about your work which you have already done. If the answer is no, then it's a very simple rule of thumb that you should likely or you should revise your whole abstract. सिंपल सी बात यह है कि the abstract it should be a surrogate, it should represent the whole story in a very short format. ठीक है, तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट का मेन थीम होना चाहिए। अब एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या? क्या ये इंट्रोडक्शन है? नो, दिस इज नॉट एन इंट्रोडक्शन। क्या एब्स्ट्रैक्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है आपके काम का, आपके प्रेजेंटेशन का? नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट आपका वो छोटा कंसाइज मिनी पेपर है कि बगैर किसी रेफरेंस के आप किसी को पूरे अपने काम का मेथडोलॉजी, आपका रिसर्च प्रॉब्लम, आपके फाइंडिंग और आपकी कंक्लूजन वो आप उसको बताना चाहते हो विद इन 300 वर्ड्स में। तो सिंपल से अल्फाज में बताने का ये मकसद है कि वो बगैर आपके काम में डिटेल में आपके 100-150 पेजेस को रीड किए बगैर विद इन शॉर्ट, विद इन कंसाइज पेज के फॉर्मेट में ही शुड गेट द होल आइडिया। दिस इज अ परफेक्ट और दिस इज कंसीडर एज अ परफेक्ट पार्ट ऑफ ए एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, अब सेकंड सवाल यह है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। पीएचडी के लेवल पर या एमएस के लेवल पर जब कभी स्टूडेंट आते हैं मेरे पास तो मैं उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि टेल मी विद इन 20 to 25 सेकेंड दैट व्हाट यू वांट टू डू। मुख्तसर से अल्फाज में, डू नॉट कंफ्यूज मी और डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ। तो देखो, कोई भी आपसे पूछ ले कि आपके रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, तो पहली बात तो यह है कि पहले आपको खुद आपके काम का समझ होना चाहिए दैट व्हाट यू वांट टू डू। अब सिंपल से कुछ रूल है जो ईच एंड एवरी वन शुड गेट द आइडिया फ्रॉम नाउ ऑन। और मेरी तो पर्सनल ये सजेशन होगी कि आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप अभी से अपने रिसर्च प्रॉब्लम पर, अपने थीसिस पर थोड़ा हल्का सा एक स्लो पेस में आप लोग अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप यू शुड नो अबाउट द एरिया, आप कौन से फील्ड में आपने अपनी स्पेशलिटी करनी है। सेकंड ये है कि कौन सी कंडीशन है जिनको आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये कि जो वो कौन कौन से डिफ़िकल्टी है विच यू कैन और कुड बी फेस इन द फ्यूचर। और थर्ड ये है कि जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो क्या वो मीनिंगफुल है, क्या उसका कोई अप्लाइड मैकेनिज्म है, इज इट अप्लाइड रिसर्च, इज इट बेसिक रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने से पहले आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, सिंपल से अल्फाज में ब्रॉड चेक क्या पॉसिबल है कि आपके रिसर्च का मकसद क्या है, व्हाट इज़ योर रिसर्च एम। अब सेकंड सवाल यह है कि आप ये काम क्यों करना चाहते हो और इस काम से आपके प्रोबेबल या वो मोस्ट कौन से आउटकम पॉसिबल है, या आप इससे क्या काम निकलवाना चाहते हो, या व्हाट यू वांट टू अचीव आफ्टर फिनिशिंग योर थीसिस। अच्छा, इसके अलावा रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च स्टेटमेंट के अंदर
आपको ये बताना पड़ेगा रीडर को। देखो, जब कभी आप लोग रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में जब आप सोचोगे, तो आप जो बताने वाला हो या जो फॉर एग्जांपल जो कोई भी आप लोगों से पूछ ले, तो आप लोग उसके बारे में यू शुड कंसीडर हिम एज अ लेमैन दैट ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर फील्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही डू नॉट नो एनी टर्मिनोलॉजी। तो आपको बहुत ही मुख्तसर अल्फाज से, एक बहुत ही बेसिक से आपको शुरुआत लेनी पड़ती है। कि फॉर एग्जांपल अब आप की अगर फॉर एग्जांपल किसी ने साइल स्टेबलाइजेशन पर अगर कोई काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड डिफाइन इट। अगर वो डायरेक्टली जंप करेगा साइल स्टेबलाइजेशन के टाइप्स में या फॉर एग्जांपल मेथड्स में, तो फिर जो पढ़ने वाले होंगे शायद उनको बहुत ही कम आइडिया हो। सेकंड ये है कि इसी काम को करने के लिए आपको कौन सी मेथडोलॉजी या कौन कौन से एजम्पशन आपको लेने पड़ेंगे, जो आपके जिससे आपका काम का मकसद पूरा हो जाए। और नेक्स्ट ये है कि यू शुड प्लेस योर टॉपिक इन ए पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट विच शुड डिफाइन द पिरामीटर और व्हाट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि इसी टॉपिक पर कुछ काम हुआ है कि नहीं। अब जैसे पिछले स्लाइड में आप लोगों को मैंने बड़ा क्लियरली बताया था दैट नेवर स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ज़ीरो, बिकॉज पॉइंट ज़ीरो से काम करना शुरू करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही इट्स अ फुल ऑफ चैलेंजेस। अब सेकंड ये है कि अगर किसी टॉपिक पर लिटरेचर रिव्यू नहीं है, तो फिर उसको करना बहुत ही महाल होगा, बहुत ही इम्पॉसिबल होगा। आप चैलेंजिंग के अलावा, क्योंकि जब आपकी लिमिटेशन नहीं होगी, सो यू विल बी एक्चुअली स्कैटर्ड, यू विल एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब ये वो सारे कुछ प्रीलिमिनरी स्टेप है जो आप लोगों को जहन में आप लोगों को रखने चाहिए, आप लोग अपने काम से शुरू करने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे मैंने एक्चुअली लिंक भी एक दे रखा है। अच्छा, सिंपल सी एक एग्जांपल ये है कि अगर आपकी टॉपिक है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेमोक्रेटिक नेशंस के बारे में, तो कुछ अब समराइज या कुछ आपका रिसर्च प्रॉब्लम कुछ इस अंदाज में पॉसिबल है that why is the voting turnout higher in some Western democracy than in other Western democracy, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, सॉरी यहाँ पर मुझसे एक वो हुई है। अच्छा, तो मतलब ये है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में टर्न आउट वोटिंग का ज़्यादा क्यों है एज कंपेयर टू ईस्टर्न डेमोक्रेसीज में। तो ये अब आपका एक रिसर्च प्रॉब्लम है। अब इसी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डेमोक्रेसी की एक ब्रॉड टर्म में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसका होना चाहिए, और उसके अब फोर रूल क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, फिर आपको ईस्ट और वेस्ट का आइडिया होना चाहिए, फिर आपको उनकी इकोनॉमी का होना चाहिए, और फिर आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या इकोनॉमी का, स्टेबिलिटी का, या डेवलपमेंट का, या तरक्की का, इसका डेमोक्रेसी से या वोटिंग से कुछ लेना देना है कि नहीं। तो ये सारे स्टेप है दैट यू शुड सॉर्ट आउट एट द रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन लेवल। अब अब अगर ये तीन चार स्लाइड को रिसर्च प्रॉब्लम को इन सब को हम लोग समराइज करना चाहे, तो नंबर फर्स्ट ये होगा कि मेक श्योर योर प्रॉब्लम इज लिमिटेड। ठीक है, अब हम लोग यू आर नॉट एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो आपका जो भी लिमिटेशन हो, जिस काम पर आपने फोकस करना हो, तो आप उसको डिफाइन करें कि ये मेरे लिमिट के अंदर है, ये दिस इज इन द स्कोप ऑफ द वर्क, दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द वर्क। ठीक है, अब जितना आप अपने रिसर्च को बढ़ाओगे उतना ही वो कम्प्लेक्स बढ़ता जाएगा। डू नॉट अटेम्प्ट टू रिसर्च टू मच, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू एड्रेस मोर देन वन इशू। तो इशू भी एक होना चाहिए, उसका सोल्यूशन भी एक होना चाहिए। अब अगर बहुत सारे प्रॉब्लम हो, आपने उसका एक ही सोल्यूशन फॉर एग्जांपल डिफाइन करना हो या देना हो, तो दिस इज नॉट ए वैलिड और ए कंप्लीट रिसर्च। ठीक है, क्योंकि फिर जो आपका रीडर होगा या जो बंदा आपको जज करेगा, इंटरनल रिव्यूअर जो होते हैं या एक्सटर्नल जो होते हैं, so he will feel scattered, he will feel, like out of the range, and he will understand nothing. So you should actually define your limit of the study as well. और सेकंड ये कि यू शुड रिमेंबर टू कंसीडर योर टाइम एंड रिसोर्स एलोकेशंस एज वेल।
ठीक है, कि वो कौन कौन से एलोकेशन है, वो कौन कौन से रिसोर्सेज है, वो कौन कौन से पोटेंशियल है जो आपको बेसिकली चाहिए आपको काम करने के लिए। और नेक्स्ट ये है कि एक्सप्लेन द बाउंड्रीज ऑफ योर रिसर्च, मतलब ये है कि आप वो किसके कंटेक्स्ट में करना चाहते हो, आपके काम का कंटेक्स्ट क्या है, आपके काम की बाउंड्रीज क्या है। तो ये जितनी भी है, तो अच्छा, रिसर्च प्रॉब्लम जो हो वो बगैर मेथडोलॉजी के वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। ठीक है, द प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट फेल्ट नीड, जो आपने फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर एक एंड्रयू एंड हेल्डर बर्ड 1982 जिसमें इन लोगों ने कुछ काम किया है, उसके इनके मुताबिक रिसर्च प्रॉब्लम कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता अगर वो प्लानिंग या उसमें अप्लाइड की जितनी भी खसियत हो रिसर्च की, अगर उनको कंसीडर ना किया जाए। ठीक है, द प्रॉब्लम इज नॉन हाइपोथेटिकल, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल एविडेंस। ठीक है, इट शुड सजेस्ट मीनिंगफुल एंड टेस्टेबल हाइपोथेसिस। देखो, कभी भी हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, सिंपल से अल्फाज में आप एक प्रॉब्लम को ढूंढना चाहते हो, और आप लोग यकीन कीजिए अगर आपको ये समझ आ जाए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या करना है, तो फिर आपने तकरीबन 20% आपने काम कर लिया। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली ये तक आइडिया नहीं होता कि आपने करना क्या है और कैसे करना है। और नेक्स्ट ये कि अगर जब आप उनसे पूछ लेते हो कि आप व्हाट इज योर रिसर्च एम, व्हाट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम, तो वो लोग फिर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो सिंपल से अल्फाज में बताने का ये मकसद है कि आपको अभी से आइडिया होना चाहिए कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स क्या है, आपकी रिसर्च की लिमिटेशन क्या है, और आपके रिसर्च का जो है वो अप्लाइड है या फिर बेसिक रिसर्च है। तो ये सारे जो स्टेप है ये बहुत ही बेसिक है। अच्छा, इस स्पेसिफिक स्लाइड में अब आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा कि डज होम रीडिंग हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप। ठीक है, अब इसका सवाल जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन देखो, एक चीज़, एक लाइन आप लोग समझ लीजिए, दैट एक्सप्लोरिंग द रिसर्च प्रॉब्लम डज नॉट डीपन द नॉलेज, does not give you the extra knowledge regarding the issue, or it will not give you anything new, it will not give you anything conclusive। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर रिसर्च प्रॉब्लम का आइडिया हो गया सो योर पार्ट इज डन, नो नो, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है ना, अगेन इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल। टीचर के जो हमारे एलिमेंट्री स्कूल के जो हमारे टीचर होते हैं, आर दे मोर क्रिएटिव। अच्छा, अब इन सब को अगर हम लोग एनालाइज करना चाहे, वो वही जो फिगर जो आप लोगों को मैंने बता दिए कि आप लोगों के काम में एक दफ़ा फिर से जब जो ये हमारा पार्ट है एनालाइज का, ये पर्पस का, रिस्पेक्ट का, और किन के कंटेक्स्ट में आपने करना है, तो ये आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सिमिलरली एक्चुअली स्लाइड है कीवर्ड का। ठीक है, कीवर्ड जो है ये हमारे वो एब्स्ट्रैक्ट का वो हिस्सा है जो बेसिकली कंसीडर होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट का मेन पार्ट। अच्छा, ये वो इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, कीवर्ड्स होते हैं जो आपको आपको एक्सेस देते हैं किसी भी काम तक पहुंचने के लिए। आई होप कि अभी तक जितने भी लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर है, सब्जेक्ट के जो इस सेमेस्टर में जो लोग ले रहे हैं, तो उनके सबके academia.edu पर सबके अकाउंट हो गए हैं। तो आप लोग का जो भी फील्ड है, जियो टेक्निकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, आपका जो भी फील्ड है, ठीक है, आप लोग आज एक काम कर लीजिए कि आप लोग अपने फील्ड के रिलेट, जैसे अब मेरी स्पेशलिटी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिहाज से है, तो अगर मैंने कुछ भी करना हो तो सिर्फ आप लोग एकेडेमिया में ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग आप लोग सर्च कर लीजिए, तो आप लोगों को कम से कम 1000 से ज़्यादा आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर, बुक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो सिर्फ मैंने क्या लिख दिया, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, तो ये मेरे वो कीवर्ड्स है जो बहुत ही यूनिक है,
जो जितनी भी आर्टिकल में पूरी दुनिया में जितनी भी काम हुआ है अभी तक, अगर वो एकेडेमिया पर मौजूद है, वो रिसर्चर एकेडेमिया पर है, उसने कोई भी काम अपलोड किया है, तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी। किसके थ्रू? यूनिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू। अब आप लोग ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम इन यूनिक वर्ड्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं। इफ़ द पेपर फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर रीजन, जैसे आपका जो आपकी जो जियोग्राफिक लोकेशन हो गया, या फॉर एग्जांपल क्लाइमेट हो गया, तो या फिर सेमी एरिड वगैरह हो गए, पोलर रीजन, तो फिर वो आपके थोड़े से कीवर्ड बन रहे हैं। या जो आपकी फॉर एग्जांपल कोई भी मटेरियल है स्पेसिफिकली, या कोई ऐसी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या टेक्निक है जो आपके मेथोडोलॉजी का बेसिक हिस्सा है, जैसे जीआईएस, डायमेथल एनालिटिक हायरार्की प्रोसेस, एमसीडीएम, अल्कलाइड्स, एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी वगैरह, एनिमल डंग वगैरह। तो ये जो है वो ये हमारे वो यूनिक कीवर्ड्स है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये कि जो आप कीवर्ड सजेस्ट करना चाहते हो, क्या वो मतलब ये है कि लॉन्ग रन में क्या वो कितने यूनिक है, कितने वो मतलब एक काइंड ऑफ स्टक हो रहे हैं, या उन पर कितना काम हुआ है। जैसे यूनिक या जो बहुत ही फंडामेंटल फिनानेमा है कीवर्ड की, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गई, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे बहुत ही यूनिक वर्ड के साथ साथ बहुत कॉमन कीवर्ड्स भी है। अच्छा, अब आपका हो गया टाइटल का, एब्स्ट्रैक्ट का और कीवर्ड्स का। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन हमारा क्या है? वो ये हमारा वो बेसिक पोर्शन है जिसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं एब्स्ट्रैक्ट के बाद, अगर किसी को हमारे आप लोगों ने बिल्कुल पॉइंट ज़ीरो से यहाँ पर आपकी शुरुआत होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आपके काम का डेप्थ क्या है, या इसी काम पर कितना काम हुआ है। तो आपने यहाँ पर इसका एक बहुत ही सिंपल सा सजेशन ये है कि आपने जो रीडर है उसको एज अ लेमैन आपको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। आपने उसको बिल्कुल बेसिकली जो नॉलेज है उसी फील्ड की, वो आपको देनी चाहिए। मेरी सजेशन ये होगी कि इस पोर्शन में, इंट्रोडक्शन में, अगर आप लोग कम से कम रेफरेंसेस वगैरह इस्तेमाल कर ले तो ये सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एड्रेस करना है और टारगेट करना है बहुत ही बिगिनर लोगों को, ठीक है, जो आसानी से आपके काम को समझ सके और वो फिर आगे प्रोसीड हो सके। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारा ये लिटरेचर रिव्यू का। बहुत सारे लड़के को बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीएचडी या एमएस के लेवल पर इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। वो डायरेक्टली कट एंड पेस्ट कर देते हैं, वो फिर उनका काम प्लेजराइज आ जाता है, मतलब या जिसको हम लोग छापना कहते हैं, या जो इलीगल है रिसर्च में, जो बिल्कुल गलत है। देखो, लिटरेचर रिव्यू का ये मकसद है आम से अल्फाज में वो काम जो ऑलरेडी किसी ने उसी टॉपिक पर किया है, उसने कुछ फाइंडिंग भी किए हैं, कुछ कंक्लूजन रिमार्क्स भी है उसके, उसने ऑलरेडी कंपैरिजन, एवोल्यूशन, रिजल्ट सब कुछ उसके हैं। तो अगर हम लोगों को हमारे टॉपिक से किसी का आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल या बुक वगैरह कोई मैच हो रहा है, आपने उसके काम को सेलेक्ट करना है, तो फिर आपने उसके काम को रीफ्रेस करना पड़ेगा। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि हम बहुत सारे एमएस के स्टूडेंट जो है मेरे साथ पीएचडी के एमएस के, तो वो डायरेक्टली कट एंड पेस्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। रिसर्च लेवल पर ये आपकी इमेच्योरिटी को जाहिर कर रहा है। कोई भी, अच्छा, लिटरेचर रिव्यू कहाँ पर हम लोगों को देनी चाहिए? कोई भी डिटेल, फिगर, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा, पैरामीटर्स, ऐसी कोई बात जो मुझे ये लगे कि ये कोई इंफॉर्मेशन है, वो आपकी उसको कोट करने के लिए, उसको वैलिड करने के लिए आपको उसकी रेफरेंस चाहिए। जब हम काम को रेफरेंस दे देते हैं तो वो हमारी लिटरेचर रिव्यू बन जाती है। अब आप लोग इसके कुछ एग्जाम्पल एक दो मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, आप लोग देख लीजिए। The mode of trip generation is changed in Beijing from cycling and walking to car and less bar towards public transportation. अब यहाँ पर मैं बहुत बड़ी एक्चुअली एक जस्टिफिकेशन बना रहा हूँ कि लोगों का जो ट्रेंड था वो साइकिल से या फिर पैदल सवार से
मूव होके गाड़ी की तरफ, और बहुत कम हिस्सा जो है उसका वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ वो एक्चुअली उस पर डिपेंडेंट हो रहा है या फिर डिपेंडेंट है। तो ये मेरे अल्फाज नहीं है, न मेरी ये फाइंडिंग है, न मुझे कुछ आइडिया है। तो ये किसी के अल्फाज है जिनको मैंने कॉपी किया है, उनको वैलिड करने के लिए इनको मैंने सोर्स दे रखा है, जो आप लोग देख सकते हो इसके आतर के साथ और कौन से ईयर में उसने ये काम किया है। अच्छा, ये जो साइटेशन का तरीका है रेफरेंस का, इसको कहते हैं रेफरेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट, इन द टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, जो आपका जो काम हो उसके अंदर जो हम लोग साइटिंग करते हैं, रेफरेंसिंग हम लोग देते हैं, तो ये उसका तरीका है। अच्छा, इसी तरह एग्जाम्पल 2 भी है। अच्छा, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट एंड रेफरेंस शुड बी रिफ्रेस्ड, यू कांट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। अगर आपने ये कर दिया तो वो कंप्लीटली प्लेजराइज होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 1 ये है, ये मेरे काम का वो है, सेंटेंस है। अब अगर इसी को मैंने अपने अल्फाज में फॉर एग्जाम्पल रिफ्रेश करना हो एग्जाम्पल 1 को, आप लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कि the the travel pattern has been changed in Beijing from uh, non-motorized transportation towards car, and very less part is dependent on public transportation according to विथ रेफरेंस एंड सोर्सेस। अब आप लोग इस एग्जांपल को आप लोग देख लीजिए कि इस सेंटेंस से मैंने बहुत ही मुख्तसर वर्ड ले रखे हैं, जो तकरीबन सारे वर्ड को मैंने रीफ्रेश कर दिया। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू का आपका काम तब प्लेजराइज नहीं होगा जब हम उनको साइट कर देते हैं, लेकिन साइट के साथ साथ उनको रिफ्रेश भी आपने करना है। सिर्फ उस आतर का नाम देने से आपका काम प्लेजराइज होगा, फिर भी होगा, इसकी भी एक लिमिट है। ये हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे आगे। अच्छा, मेथडोलॉजी क्या है, मेथड क्या है? मेथड का ये मुराद है कि जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसको, वो किस किस्म का प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकल मॉडलिंग का प्रॉब्लम है, एनालिसिस का प्रॉब्लम है, किस लेवल का काम है, उसी काम को हल करने के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस, एक मेथड, एक मेथडोलॉजी हम लोगों को चाहिए, एक टूल हम लोगों को चाहिए, ताकि या उसकी एनालिसिस हो सके या मॉडलिंग हो सके या उसको हम लोग हल कर लें। आम से अल्फाज में रिसर्च का ये मकसद है कि आप एक इशू उठा देते हो, उसी इशू का आप लोगों ने हल देना है, उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है जी। जैसे find out what type of research method or appropriate for your topic, consider in depth the benefits, drawback, implementation, past study which have done। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी ने पेशावर के अंदर, जो आजकल हमारी जो एक स्टडी भी है बीआरटी की, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे 5 मोड्स है, इसमें बेस्ट मोड कैसे है, अब या हम लोग बेस्ट मोड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए मैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के साथ साथ मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज, जैसे मल्टी क्राइटेरिया डायमेंशन एनालिसिस हो गया, या फिर एनालिटिक हायरार्की प्रोसेस हो गया, तो या फिर SPSS सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर कुछ और एनालिसिस के टूल हो गए जिनके थ्रू मैं ये काम कर कर सकता हूँ। लेकिन ये चेक करने के लिए, देखने के लिए कि सिटी के अंदर अगर मैंने बेस्ट ट्रेवल मोड सेलेक्ट करना हो, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पास्ट स्टडीज सीखने पड़ेंगे, उनको रीड आउट करना पड़ेगा दैट विच मेथड दे हैव अडॉप्टेड। अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाता है रिजल्ट डिस्कशन का पार्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इस लेवल पर आपका इंट्रोडक्शन का बैकग्राउंड भी हो गया, लिटरेचर रिव्यू भी हो गई, जिसका मतलब यह है कि विच पास्ट स्टडीज हैव डन, मेथडोलॉजी भी हो गई, जो आपका मॉडलिंग का, सिमुलेशन का, या जो आपका इम्प्लीमेंटेशन का फेज है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है रिजल्ट एंड डिस्कशन का। व्हाट यू हैव अचीव्ड व्हेन यू इम्प्लीमेंट द मॉडल एंड मेथडोलॉजी। जब आपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम को अपने मेथडोलॉजी के अंदर रन कर दिया, तो उसके कौन कौन से रिजल्ट आ गए, वो कौन कौन से फिगर थे, या कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट आ गई, तो जो नई फाइंडिंग आ गई, उसको उनको आपने ब्रीफली डिस्कस करना है, उनको आपने एनालाइज करना है। अच्छा,
यहाँ पर एक और क्लू आप लोग समझ लीजिए, डिस्कशन एनालिसिस के साथ साथ आपकी जो एक्सप्लेनेशन हो, इट शुड नॉट बी बायस, इट शुड कंप्लीटली इंटरप्रीटेड, इट शुड कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रिजल्ट जो आपके साथ है। जो हमारा डिस्कशन का पोर्शन है, इसका इसका मेन बताने का ये मकसद है कि जो नए फाइंडिंग आपके आ गए, जो प्रॉब्लम आपने हल कर दिए, वही प्रॉब्लम जो है उनको आपने कैसे कंसीडर, उसी प्रॉब्लम को कैसे कंसीडर करके आपने आपको नए फाइंडिंग्स या जो नए जो आपके आउटपुट है वो आपको मिल गए। ठीक है। अच्छा, रिजल्ट एंड डिस्कशन आम से अल्फाज में अगर इन सारे स्लाइड को मैं समराइज कर लूँ, तो नंबर फर्स्ट ये है कि आपकी फाइंडिंग्स आपकी क्या है, कंपैरिजन आपकी क्या है पास्ट स्टडी के साथ, आपके काम का लिमिटेशन क्या है, और फिर आपके काम का कैजुअल आर्गुमेंट क्या है। वहाँ पर कुछ स्पेकुलेशन तो नहीं है, कुछ ओपिनियन, कुछ थॉट्स, कुछ सजेशन प्रीवियस स्टडीज़ वगैरह वगैरह से जो आपको जहन में याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर हम कोई एक मेथड इस्तेमाल करना चाहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसके मेरिट और डिमेरिट का आइडिया होना चाहिए। तो फिर आपको इतना ज़्यादा आप यू कैन नॉट एक्चुअली एम्फेसाइज ऑन द रिजल्ट एक्यूरेसी, क्योंकि जो उसका जो डिस्कवरर है, जो इन्वेंटर है, ही हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड कि इस मेथडोलॉजी के अंदर ये ड्रॉबैक्स पॉसिबल है। कंक्लूजन आपके काम का वो हिस्सा है जो आपके फाइंडिंग होते हैं। ये डिस्कशन और कंक्लूजन में अब फ़र्क क्या है? डिस्कशन जो है, डिस्कशन आम से अल्फाज में आपका वो हिस्सा है कि जो रिजल्ट, जो फिगर, जो ग्राफ, जो मॉडलिंग से जो कुछ आपके साथ आ जाए, आपने उसको बताना होता है। इस लेवल पर कंक्लूजन में कि आपके काम का, आपने अपने काम से क्या अखज़ कर लिया। आम से अल्फाज में आपने रीडर को एक 200 टू 250 टू 300 वर्ड में आपने बताना होगा कि आपका काम जो है उसमें आपको कौन कौन से वो कंक्लूजन मिल गए या जो आउटपुट आपको मिल गए, या फिर आपने फ्यूचर के लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहते हो, तो ये आप इस पोर्शन में बता सकते हो। अच्छा, कंक्लूजन में आपके ये कुछ 4 पैरामीटर है मेरी तरफ से, तो बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा इजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीस्टेट द टॉपिक, ठीक है, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर आपको ब्रीफली समराइज करना पड़ेगा आपके मेन पॉइंट को। यहाँ पर फिर आपको कुछ और पॉइंट भी आपको मतलब इंसर्ट करने पड़ेंगे। ये फिर आपकी रेफरेंस लिस्ट आ जाती है कि आप का जो टेक्स्ट हो वो लास्ट में फिर साइटेशन का जो जो आप रेफरेंस वगैरह कोड कर देते हो, दे देते हो, लास्ट में वो फिर ऐसे दिखाई देंगे। आप लोग वर्ड में यूट्यूब पर आप लोग आराम से एक वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, हाउ टू इंसर्ट अ रेफरेंस इन एम एस वर्ड। बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, लेकिन ये एक कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर होता है आपके रेफरेंस लिस्ट का, जो आपके आर्टिकल के, आपके काम के बिल्कुल लास्ट का हिस्सा होता है। प्लेजरिज्म आपके काम का वो हिस्सा होता है जो आप कहीं से कॉपी कर लेते हो, पेस्ट कर लेते हो अपने काम के अंदर, ठीक है, तो ये आपका वो हिस्सा होता है। तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने काम को रीफ्रेश करना है। परसेंटेज जो है वो 15% तक एक्सेप्टेबल है, 12 to 15%, लेकिन आप लोग कोशिश कर ले कि आप लोग विद इन 9% तक आप लोग रहिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू आप लोग प्लेजरिज्म को आप लोग चेक भी कर सकते हो। ये हमारे मुख्तलिफ टाइप्स के हमारे प्लेजरिज्म का बेसिकली हिस्सा है। हम लोग यूजुअली कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, या फिर आपको पैराफ्रेजिंग करनी पड़ती है, या फिर आपको स्टाइल आप लोगों को। तो आम से अल्फाज में बताने का आपका ये मकसद है कि आपने कॉपी कट पेस्ट, या फिर आपने किसी और के काम को अपना बताना, ये सारे जो है ये टाइप ऑफ प्लेजरिज्म है। या किसी और की फिगर को एक्सप्लेन करना अपने अल्फाज में, ये सारे जो है प्लेजरिज्म का हिस्सा है। रिसर्च साइकिल का ये है कि ये आप लोग इंशाल्लाह ये हम लोग फाइनल टर्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ यू कैन सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट, योर वर्क फॉर दी पब्लिकेशन। इनिशियल स्क्रीनिंग कैसे होती है, या फिर जब आप अपना काम कर लेते हो, तो इस लेवल पर आपका जो सुपरवाइज़र होता है, जो आपको गाइड करता है, तो उसकी क्या वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जर्नल यूजुअली कैसे होता है। ये एडिटोरियल प्रोसेस है जो इस लेवल पर मेरे ख्याल में इसका ऐसा नहीं होना चाहिए।
अच्छा, हाउ टू बी सोशल, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ लूँ तो हर किसी के पास फेसबुक वगैरह होगा, लेकिन जैसे आप लोगों को मैं आई एम एक्चुअली एम्फेसाइजिंग अगेन एंड अगेन कि आप लोगों को एकेडेमिया पर होना चाहिए। आप लोगों ने ना आज के बाद आप लोग कोई भी टॉपिक एकेडेमिया पर आप लोग ढूंढ सकते हो प्रोफेशनल कांटेक्ट के लिए। यू कैन क्रिएट अकाउंट ऑन लिंक्डइन, ठीक है, वो फेसबुक वगैरह से बहुत ही एक्चुअली मुख्तलिफ है। तो ये मेरे कुछ सजेशन है जो आप लोगों को कीप इन माइंड करने चाहिए। रिसर्च गेट के लिए यू यू हैव टू बी योर ओन institutional email, which is not possible for so many people, but you can create a free account on academia, on like Mendeley, on my science and work, and you can also you can also sign in for the Google alert notification as well. Thank you very much. This was the lecture नंबर 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो ये आप लोगों के 3 लेक्चर हैं। आप लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं आप लोग अपने काम पर अपने उस पर मिड टर्म असाइनमेंट पर आप लोग काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। और तकरीबन जितना कोर्स वर्क था मिड टर्म तक वो तकरीबन हो गया है। और रमज़ान की वजह से एक्चुअली ये जो लेक्चर नंबर 4, 5, 6 है, इनको मैंने एज अ होल एक ही पार्ट के अंदर मर्ज करके अपलोड कर दिया है। तो आई होप के दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर ईच एंड एवरी वन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मैं असाइनमेंट जो है, जो आप लोगों ने जो कुछ करना है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगा। तो आप लोग अपने असाइनमेंट पर अभी से काम शुरू कर सकते हो। और आप लोग के पास कम से कम 2 वीक है, 3 वीक है। तो इस असाइनमेंट का जो डेडलाइन होगा तो आप लोगों को एक्चुअली ये देना है 9th वीक से पहले पहले, ठीक है। तो इंशाल्लाह असाइनमेंट के साथ ही मैं उसका डेडलाइन वगैरह वगैरह मेंशन कर दूंगा। दुआ में याद रखिए, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। और विश यू ईच एंड एवरी वन हैप्पी एंड ब्लेस्ड रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम।